नेक्स्ट टॉपिक कार्बीन। तो कार्बन इज अनदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन कैसे प्रिपेयर्ड होता है, हाउ द कार्बन इज प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन तो फर्स्ट में है कि व्हेन डाइजोमीथेन is heated or exposed to sunlight, then carbon is formed. So diazomethane CH2N2, this is carbon, sorry, this is diazomethane, and it is exposed to sunlight, then this is carbon. In carbon, 2 electrons are bonded and 2 electrons are free. In free radical, only 1 electrons are free, and in carbon 2 electrons are bonded and 2 electrons are free. ठीक, now another one RCH2N2, ये हीट कर दीजिए, then this is alkyl carbon. Another preparation is that second one, when ketene is heated. Here, when ketene is heated, बहुत ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा this is alkyl carbon, this is मिथाइल कार्बन नहीं, इसको सिंपली आपको मिथिलीन भी बोल सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज मिथिलीन। ठीक है, मिथिलीन। सेकेंड प्रिपरेशन इज दैट व्हेन ketene is heated, it releases carbon. CH2 double bond CO double bond. This is ketene. When ketene is heated, तो आपका क्या बनेगा, ये कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड प्रिपरेशन इज दैट दिस इज Simon-Smith reaction. In Simon-Smith reaction, when diiodomethane is heated in presence of copper and zinc, then it releases carbon. The reaction is that this one, Simon-Smith reaction, when diiodomethane is heated in presence of copper and zinc, then it releases carbon. So this is CH2I2, कॉपर एंड जिंक ऐड किया तो आपका ये हो गया ठीक है। डाई मतलब दो और आयोडीन दो है,
ठीक है, डाइआइडोमीथेन। नेक्स्ट वन, रिएक्शन नंबर फोर्थ, व्हेन chloroform is heated with sodium hydroxide, it releases dichlorocarbene. So CHCl3, this is chloroform, and when it is heated with sodium hydroxide, तो यहां से एक H और यहां से OH, वाटर निकल गया, और एक Na और एक Cl, NaCl, तो क्या बचेगा, CCl2, NaCl and water. So this is chloroform is heated with sodium hydroxide, it releases dichlorocarbene. So this is all about preparation of carbene, how carbene is prepared, how carbene is formed. Now the type of carbene, the carbene is of two type, NaOH, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो वाटर निकल गया, रेडिकल फ्री रेडिकल कहाँ, तो डॉट लगा, पेन से कर रहे थे तो यहाँ दिखा रहे थे कि यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल गया, यहाँ से Na और यहाँ से एक Cl, NaCl निकला, और बचा क्या यहाँ पे, CCl2, तो CCl2 क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। नाउ कार्बन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, कार्बन इज ऑफ टू टाइप, one is singlet carbene, another one is triplet carbene. Singlet and triplet carbene, two type of carbene, one is singlet carbene, another one triplet carbene. तो singlet carbene and triplet carbene, तो type of carbene, this is singlet carbene, this is triplet carbene. What is the difference between singlet carbene and triplet carbene? In singlet carbene, the two unbonded electrons present in pair condition, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ये CH2, these two unbonded electrons are present in paired condition, ठीक है, but in these cases what happens, these two unbonded electrons are not in paired. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये, the two unbonded electrons are in paired condition. It means these two electrons are present in same orbital with opposite spin. इसका ही मतलब हुआ, it means these two electrons are present in same orbital with opposite spin. But here these two electrons are not in bonded condition. The two electrons are not in bonded condition. These two electrons are present in different orbital with same spin. यहाँ पे different spin था, opposite spin था, या different spin था, opposite spin. But here these two electrons are present in different orbital with same spin. These two electrons are present
in different orbital with same spin। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम से देखो, जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है, कार्बन में आपका 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन टोटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। तो 1s2 2s2 2p2 यही हुआ ना। 1s2 जैसे कार्बन कितना होता है? 6 है। 1s2 2s2 2p2। तो ये 2p p ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो p आपका सब सेल्स में 3 आपके ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो यहाँ पे आपका हो गया ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। These 2 electrons are present in same orbital with opposite spin. One is clockwise, another is anti-clockwise. ठीक है? But in this case, what happens? In this case, in p orbitals, p subcell there is 3 orbitals. These 2 electrons are present in different orbital with same spin. ठीक है? Different orbital with सेम स्पिन। ये कहने का ही मतलब हुआ, यहाँ पे जो लिखा है उसको ये इसका ये सेंस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा स्पिन स्टेट है। स्पिन स्टेट का जो होता है फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ स्पिन स्टेट तो होता है, स्पिन स्टेट का जो फॉर्मूला होता है 2s+1। 2s+1 होता है। तो यस क्या है? स्पिन स्टेट है। अब ये आपका क्या है? एक प्लस हाफ है, दूसरा माइनस हाफ है। तो कितना हो गया? क्या हो गया? न्यूट्रल। 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो एस की वैल्यू 0। तो आपका टोटल स्पिन स्टेट कितना हुआ? 1। ठीक है, तो स्पिन स्टेट यहाँ पे कितना हो गया? ये फॉर्मूला था स्पिन स्टेट का निकालने का। तो यहाँ पे स्पिन स्टेट आपका हो गया, कितना हो गया? 1। ठीक है, और यहाँ पे स्पिन स्टेट, ये पॉइंट नंबर लिखते जाना। ये पॉइंट नंबर आपका 1 2, दिस वन इज 3 और दिस वन इज 4। ठीक है, और इधर आपका आ जाओ, यहाँ पे आपका क्या है? ये प्लस हाफ, दिस इज प्लस हाफ, दिस इज आल्सो प्लस हाफ। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 1। तो 2s+1, तो हाउ मच स्पिन स्टेट? 3। इधर स्पिन स्टेट इज 3, स्पिन स्टेट 3। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना साथ साथ करते जाओ, तभी आपका पूरा होगा। ठीक है ना। अब ये जो भी जितने घंटे का पढ़ाई होता है, अब दिन भर में उतना नहीं करोगे तो क्या पढ़ रहे हो? इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो, उतना तो करना पड़ेगा। और सब सारा क्वेश्चन बनेगा उससे, अगर आप करोगे तो। इसमें हाफ लिया और इसमें 1 लिया था, -1 और +1 लिखा था। तो -1 और +1 कितना हो गया? 0 हो गया ना। हाँ, तो उसमें हाफ ही लिया, उसमें भी तो 1 लेना चाहिए था ना। अब सुनो ना, तो वही तो कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, -1 +1 कितना हो गया? इसकी वैल्यू 0। तो 2s × 0। वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ -1 और +1 लिया था ना, वहाँ प्लस हाफ क्यों लिया? वहाँ पे भी तो +1 और +1 ले सकते थे। यहाँ पर उसमें, हाँ, उसमें 1 लिया था, -1 और +1, और इसमें प्लस हाफ ले रहे हैं। अरे बेटा, ये हम यहाँ से जो स्पिन स्टेट निकाले, यहाँ से निकालना। तो ये जो आपका क्लॉकवाइज है, इसको हम प्लस हाफ लिए। अच्छा। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस हाफ लिया। है ना, क्योंकि इससे मेरी बात पहले सुनो, क्योंकि सेम स्पिन आपका एक ऑर्बिटल नहीं हो सकता। दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो प्लस हाफ माइनस हाफ, हाउ मच? 0। तो फॉर्मूला ये 2s+1, तो s की वैल्यू 0, तो स्पिन स्टेट कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, आपने +1 और -1 लेने को कहा था पहले, वो उसके लिए। अब किसके लिए? वो एरोज जो बनाया ना, उसके लिए। हाँ, इसके लिए +1 और -1 बोला था लेने। अरे ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो ये बोल ही नहीं सकता हूँ ऐसा। एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है प्लस हाफ होता है, ये +1 तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, पर यहाँ भी बोला होगा +1, यहाँ मैं बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, और ये आपका क्या है? प्लस हाफ।
ठीक है, तो प्लस हाफ कितना होगा, 1 हो गया। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हुई ना एस की वैल्यू। तो फॉर्मूला रखेंगे तो 2 × 1 + 1, तो हाउ मच, 3। तो वही तो स्पिनर स्टेट 3 लिखा है। ठीक है, जहां तक आपका ये क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात है, यहाँ पे लिख लो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और पॉइंट लगा देना, 4 5 है ना जो भी हो, फिर पॉइंट लगा दो। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन और दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी sp इसमें sp2। ठीक है, तो दिस इज कार्बिन। अब व्हाट आर द application of carbene, where we find the carbene? The carbene play an important role in the formation of cyclocompound as well as elongation of carbon chain. So there is mostly 2 application of carbene. तो यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डालो application of carbene। फर्स्ट में लिखो इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड इन द फॉर्मेशन, सपोज दैट दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH2N2 है। ये रिएक्शन के तौर पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हीट करेंगे, ऐसे यहाँ पे हीट करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज डायजोमिथेन इज मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड, इट रिलीजेस कार्बिन। यहां से कार्बिन रिलीज होगा, तो कार्बिन जब रिलीज होगा तो आपका क्या होगा, ये CH2N2। अब यहाँ पे क्या है, ये इस केसेस में आपका क्या है, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड वीकर होता है, तो पाई बॉन्ड टूट गया इसे, और यहाँ पे आ गया कार्बिन, ये कार्बिन आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बनाइए, क्या बनाइए, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो वो नहीं देगा, सीधा रिएक्शन देगा, वहां पे कर देगा, आपका दे देगा A, देन A इज, अब बताना। ठीक है, सिमिलरली another one is that CH3 CH double bond CH2, this is 1 propene and this is ketene CH2 C double bond 1। ये हिट किया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। साइक्लोब्यूटेन क्या, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं लगना है ना। यहाँ से कीटीन से क्या रिलीज होगा, कार्बिन, कार्बिन होगा CH2, तो यहाँ लगेगा ना, इधर से थोड़ी लगना। अच्छा, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH डबल, ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा CH2 और यहाँ पे CH2। तो क्या होगा नाम इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगा ही। हाँ बताओ क्या नाम होगा। हाँ, रिंग कितने का है, 3 का। तो 3 से क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल भी और प्रोपेन भी। तो साइक्लोप्रोपाइल इथेन होगा, क्योंकि 2 कार्बन है ना, एक तो 2 कार्बन कहाँ, ये तो जब साइक्लोप्रोपाइल बोलो तो इतना हो गया, फिर ये तो अलग हो गया। तो कंपाउंड किसका बनता है, साइक्लोप्रोपाइल मीथेन होगा। कंपाउंड उसका बनता है जहाँ पे ज्यादा कार्बन का होता है। तो रिंग में है 3 कार्बन और आपका स्टेट में है एक चेन, एक कार्बन है, तो किसका कंपाउंड बनेगा, रिंग का। तो क्या बोलोगे फिर,
मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, दिस इज मिथाइल साइक्लो, ये नहीं साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, वैसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कंपाउंड, ज़्यादा कार्बन जहाँ होगा वो उसका कंपाउंड बनेगा। तो दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन देखो बेटा, जैसे ये देखो, ये है, ठीक है, यहां पे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1,2 डाइमिथाइल इथेन। अरे मैं सही तो बोला है, 1,2 डाइमिथाइल इथेन, सही तो बोला। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कंपाउंड है। हाँ कंपाउंड तो नहीं। क्या नाम है जी? बोलो तुम लोग तो, ये चलो इसका तो अभी मान लेंगे 12th चल रहा है, तुम लोग तो बताओ क्या नाम है इसका। इतना टाइम नहीं। अच्छा ठीक है, मिथाइल प्रोपेन। वन नहीं, तीन है ना ये मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी ना, हाँ। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन रिलीज करेगा, ठीक है। जब कार्बन रिलीज करेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इधर से यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3। यहाँ से क्या रिलीज हुआ, यहाँ से ये आपका फ्री रेडिकल रिलीज होगा, ये सॉरी कार्बन रिलीज होगा, मिथिलीन। अब ये CH2 बीच में घुसेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्डेड हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्डेड हो जाएंगे। तो अब क्या नाम होगा किसके कंपाउंड का? ये यहां से टूटा दे बना ना, ठीक है, ये बन गया, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज से क्या हुआ था, फ्री रेडिकल्स बने थे। तो फ्री रेडिकल ये बॉन्ड टूट करके यहाँ से टूट गया यहाँ बॉन्ड, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ऐसे ये टूट गया ऐसे, और एक कार्बन रिलीज हुआ था यहाँ पे ऐसे। अब ये कार्बन यहाँ पे बीच में आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब क्या नाम होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो चेन इलोंगेट हुआ ना, चेन लंबी हुई ना, तो सेकंड में इलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन, इसके यहाँ पे लिखना, जो सेकंड एप्लीकेशन है या छूट गया था आपको, लिखो इलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन। तो समझा जी? हैं, बोलता नहीं है कभी, कुछ नहीं बोलता है। तो हाँ ना कुछ बोलो, बैठे रहने से नहीं होगा ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, समझे। कहीं मान लो सपोजिट पढ़ाते समय कहीं गलती हो गई तो आप ठोको, ठीक है, या कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करो, तब साथ साथ चला हुआ माना जाएगा ना। N2 निकल जाएगा, N2 तो स्टेबल है, जैसे यहाँ पे यहाँ N2 निकला था ना, ये N2, ठीक है, वो स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। चलो, तो दिस इज 2। क्वेश्चन आया था, ये देखिए, ये नीट का ही क्वेश्चन है, नीट में भी है और इंजीनियरिंग में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था, इन रिमर-टिमन रिएक्शन द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इज, तो रिमर-टिमन रिएक्शन आपको तो जानना पड़ेगा पहले क्या है। क्वेश्चन ये है, इन रिमर-टिमन रिएक्शन the reactive intermediates is, तो पहले रिमर-टिमन रिएक्शन लिख देता हूं, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका CHCl3 और आपका NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी आपका प्रोडक्ट बना
प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोडक्ट आपका बन जाता है, ये सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और उधर फिर आपका NaCl और H2O लाइक दैट और कुछ निकलता है, ठीक ऐसे। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि ये जो रिवर्टिवन रिएक्शंस जो हुआ तो इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या हुए, फ्री रेडिकल्स हुए, कार्बोकेटायन हुआ या क्या हुआ। मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब ऑप्शन लिख देता हूँ। ए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया, फिर बी में है CCl2, सी में है CH3 और डी में है CH3 प्लस। अब बताओ क्या होगा आंसर। ये आया हुआ है, ये नीट में और आपका इंजीनियरिंग दोनों में कोई क्वेश्चन रिपीट में जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, लेसन तो उतना ही है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये सबसे तो आएगा।